बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान राय इमदाद अली तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉक्स। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हर दिल अज़ीज़ जो कि हमारे बहुत मोहसन हैं, हम आज उनकी दावत पे इधर उनके फार्म पे आए हैं। मेरी मुराद है जनाब नूर हसन बघेला साहब, तो हम उनसे मिलते हैं और उनसे कोई अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ਜੀ ਵਾਸਲਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਗੇਲਾ ਫਾਰਮ ਹੜੱਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ। अच्छा सर, सबसे पहले आप ईद मिलन पार्टी के हवाले से आपका क्या पैगाम है? पिछले साल भी आपने ईद मिलन पार्टी रखी थी, तो इस बारे में आप क्या? ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਜਾਨ ਅਸਾਰੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਗੇਲਾ ਫਾਰਮ ਹੜੱਪਾ ਖਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਗਸੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਡਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਈਦ ਮਿਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। अच्छा सर, अपने कैरियर का मुख्तसर तारफ़ हमारे नाजरीन के लिए बयान फरमाएं। अपने कैरियर का ਕੈਰੀਅਰ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚूँकि ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੌਜ਼ਾ ਘੁੱਲੇ ਕੇ ਬਗੇਲੇ ਔਰ ਮੌਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਚूँकि ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਅਫਤਾਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 509 ਗਾਬੇ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ FSC, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-10% ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ और यूज़फुल सिटीज़न के तौर पर वो काम कर सकें। सर, आप साबिक सुपरडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा भी रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो एक मॉडल जेल है जो पंजाब और पाकिस्तान की नंबर 1 जेल है जी। तो जेल सुपरडेंट के तौर पर आपका तजर्बा कैसा रहा? अलहमदुल्ला जी, मेरा सब तो बड़ा है कि मैं जो प्रमोशन हुई मेरी तो मैं रिक्वेस्ट करके नवा एक अदारा सी, नवा प्रोजेक्ट सी, इसलिए लिया सी कि वाकई मैं हमेशा मेरे जहन 'ਚ एक सवाल सी ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਕਾੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੇ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਗੰਦਮੰਦ ਔਰ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸਲਾਹੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬੈਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਈਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਟ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ दैट वाज द ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह कि अल्लाह ने वो एक नया काम करवाया। और जेलों की मैंने पाकिस्तान की जेलों की अक्रॉस द वर्ल्ड, नो डाउट कल भी वो मॉडल जेल थी और आज भी पाकिस्तान में, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड मैं वो परसेप्शन भी जेलों की बुरी जड़ी सी पाकिस्तानी दी वो ठीक की थी अलहमदुलिल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान की जेल सिस्टम में आपके नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सब तो बड़ा चैलेंज तो असल राय साहब ये है कि पब्लिक सर्विस की असल रूह ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ गए हैं ज़्यादातर पब्लिक सर्वेंट जड़े ने। हाँ, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो अपना काम करते हैं और करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ किसी भी सर्विस में ये है कि वो पब्लिक सर्विस का असल स्पिरिट समझना, और फिर प्रिजन में ख़ासकर इसलिए कि उसमें बेसिक काम आपका जो है वो ये है कि आपने माशरे के जो बिगड़े हुआ एलिमेंट है, बिगड़े हुए जो हिस्से हैं, या जो बहरहाल बाज़ औक़ात लोग नाकर्दा में भी कुछ आ जाते हैं और बुरे हालात में आ जाते हैं, कि उनको आपने बेहतर इंसान कैसे बनाना है और उन्हें मतलब ला फुल एंड ला अबाइडिंग सिटीज़न एंड यूज़फुल सिटीज़न ऑन द स्ट्रीट्स वापस कैसे ले जाना है। ये असल में चैलेंज है। तो सर, कैदियों की असलाह और बहाली के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए आपके नज़दीक? बस इस्लाह और बहाली के लिए जी बड़ा सीधी सीधी जो थ्योरेटिकली तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि आपका अगेन वही स्पिरिट होना चाहिए कि आपने वो काम करना है और आपने उनकी इस्लाह के लिए हर वो काम करना है जो ज़रूरी है। वो बेशक आपको मतलब वो फिज़िकली है, वो मेंटली है, वो स्पिरिचुअली है, वो बेशक इंटेलेक्चुअली है कोई। तो आप जब ये तहिया कर लेते हैं तो फिर वो एक एक चीज़, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उकाड़ा में किया, वो आप लोगों को पता है कि वहाँ उनको मैंने मतलब एक सफाई सुथराई के हवाले से कैसे कंसेप्ट दिए, मैंने वहाँ लोगों को मतलब कैसे गार्डनिंग के हवाले से मैंने लोग कैसे तैयार किए, मैंने वहाँ मतलब उनको बाकी जो डिफरेंट छोटे मोटे ट्रेड थे वो कैसे सिखाए, फिर उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसे दी, उनको ज़हनी तौर पे पॉजिटिव बनाने के लिए और एक हेल्दी माइंड बनाने के लिए कैसे वो स्टेप्स लिए। तो ये हैं सारे काम, अगर आप प्रैक्टिकली वो उस तरह कर सकें। बाकी थ्योरेटिकली तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स ऑन द बोर्ड। तो सर, आपके नज़दीक क्या जेलों में असलाही निज़ाम वाकई मौसर है या मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत? हाँ नहीं, अगर इसको आप देखें, कोई अगर 30-40 साल पहले तो बहुत बुरा हाल होता था। इवन खाने के हवाले से लोग खाने की डीज़ल टर्म इस्तेमाल होती थी और बिल्कुल डीज़ल लाइक वो होता था। अब जो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अगेन ये जो ट्राली वाला कंसेप्ट और बड़ी बाज़त तरीके से खानों वाला जाना, तो अगेन ये उकाड़ा जेल ने शुरू किया और मैंने वो ट्राली पहले बनाई और वहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम, और ख़ासकर ये जो चूना वूना लगाना और वो पता नहीं कैसे दौरे शौरे करवाना, विज़िट्स आने तो इस तरह का चूना लगाते थे हम लोग, चूना लगा के लोगों को तैयारी करके चूना लगाते थे। तो उस कंसेप्ट को मैंने बदला, ग्रीनरी लाया, और ग्रीनरी से अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्लेजेंट माहौल हुआ, साफ़ सुथरा माहौल हुआ, हेल्दी माहौल हुआ, जिसका एक हेल्दी इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा। सर, कोई ऐसा वाक़या जो आज भी आपके ज़हन में ताज़ा हो? कोई ऐसा वाक़या? बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे, जैसे अब अडयाला में, कोट लखपत और भी यानी सेंट्रल जेल फैसलाबाद के हवाले से, उकाड़ा के हवाले से, इवन साहिवाल के हवाले से काफ़ी सारे वाक़यात हैं। लेकिन एक वाक़या ऐसा है कि वो मैं उकाड़ा के हवाले से ही कहना चाहूँगा कि एक जवान जो दीपालपुर में जिसने अपने उनके जो मुखालफिन थे उनको अदालतों में मर्डर किया था, तो वो माशाल्लाह ही वाज मिस्टर इमरान, मोहम्मद इमरान वट्टू, तो अब तो वो हाफिज़ इमरान है। तो वो उसको मैंने हाई सिक्योरिटी एरिया में रखवाया हुआ था। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि जी मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। तो मैं पहली दफ़ा मैंने सुना ही नहीं कि ये डाज करना चाहता है, वो जो एक सिक्योरिटी एंगल होता है। तो दूसरी दफ़ा उसने की तो मैंने फिर भी उसको उस तरह नहीं सुना। तीसरी दफ़ा जब उसने की तो मैंने दफ्तर आके सोचा कि भाई हु आर यू कि उसकी आप केयर ना करो, यू आर हेयर जस्ट फॉर दैट, बस जस्ट फॉर हिम, उसको ही तो ठीक करना है। इस तरह के बंदे को अगर ठीक कर पाओगे तो असल काम ये है। तो मैंने उसको अपने दफ्तर बुलाया, उसको काफ़ी पिलाई, उससे गपशप लगाई, और जब मुझे फ़ील हुआ कि ये वाकई हाफिज़ बनना चाहता है तो मैंने उसको आज़ाद किया, खुला आज़ाद किया। और उसने फिर अमेजिंगली वो कोई मतलब 6 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। उसका फिर टेस्ट हुआ और जिसमें मुफ्ती अहमद अली साहब जो थे वो जामिया अशरफिया की तरफ से, और बाकी टीम जो थी वो इतनी सरप्राइज्ड और इतनी मतलब हैरान थी कि हमारे दर्स वाले बच्चे इस तरह नहीं करते जिस तरह इसने याद किया। और बघेला साहब आप ऐसा करें, हमें जफ़ी डालें। तो मैंने कहा जी मैं तो क्लीन शेव हूँ, मैं तो आम सा आदमी हूँ, मैं तो गरीब मतलब एक ख़ताकार आदमी हूँ, तो मैं आप लोगों से कैसे, इतने मुफ्ती आप हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो आपने काम किया है इसका आधा सवाब भी हमें दें और हमारे से जफ़ी डालें। तो मैंने कहा सर आप सारा ले लें, मैं इंशाल्लाह कोई और काम ऐसा कर लूँ। तो मैं जहाँ भी गया मैंने कोशिश की कि इस इस्लाही काम मैं तो ये कहूँगा कि ये उस तो नौ वो जो हाफिज़ इमरान है माशाल्लाह वहाँ अपनी वहाँ सॉरी जी वो हाफिज़ इमरान साहब आप वहाँ अपने इलाके में तरावी भी पढ़ाते हैं और अपने लोगों को, और मेरा उससे रब्ता भी है माशाल्लाह। बिल्कुल, उसका जज्बा था जो इसको जल्दी वो उसने इतना जी ऑफ कोर्स। और वो बड़ा साहब जरे टैलेंटेड लोग होते हैं। ये जो इवन क्राइम करते हैं ये हम इनको इवल जीनियस कहते हैं, और अगर ये पॉजिटिव साइड पे आ जाएँ तो इनसे बड़ा अदरवाइज पॉजिटिव जीनियस कोई नहीं हो सकता। तो ये बस उस मतलब डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, कैदियों के साथ बर्ताव के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैदियों के हवाले से सिंपल सा ये है कि आप अपने आप को जैसे देखते हैं
इंसान जैसे देखते हैं, इंसान ह्यूमन एंगल को देखें, इंसानी लेवल पे देखें, इंसान समझें किसकी जगह और पे मैं अपने भी आप हो को उस सकता हूँ। पोजीशन में लेके जाएं और देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो ह्यूमन एंगल था, मैंने एक दिन भी कभी, ये लोग जूते शूते पॉलिश करवाते थे अफसर और इस तरह छोटे अफसर जब होते थे या इस तरह, मैंने एक दिन भी किसी कैदी को अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने दिया और मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उस ह्यूमन एंगल को नहीं छोड़ा। हाँ, जो क्रिमिनल जो सख्त जो अदरवाइज को लोग होते थे उनसे सख्ती ज़रूर हुई होगी, बट वो भी इस मकसद के लिए कि उनको सही करना है, उनकी इस्लाह करना है। अच्छा सर, क्या कभी किसी कैदी की कहानी ने आपको मुतासर किया? बहुत सारी कहानियाँ हैं, वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अगेन एक कोई ऐसी हो कि जिसके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई हो? ऐसी है कि वो बच्चा भी अब सेंट्रल जेल साहिवाल में शिफ्ट हुआ था शेखुपुरा से। तो उसका जो उसने मर्डर किया हुआ था, उनकी को अपनी फैमिली के को मामलात ऐसे थे कि कोई अपनी जो ऑनर किलिंग का जो होता है, जो अपनी कोई इज्जत के मामले में, जो गैरत के मामले में जो हमारे मर्डर हो जाते हैं, इस तरह का कोई मसला था जिसमें वो का हो गया। तो जब वो मेरे सामने आया तो बड़ा टफ आदमी मैंने देखा, और भी कोई उस तरह के इश्यूज जब थे, तो मैंने फिर लगातार उस पर ये काम किया, मतलब ये उस पर बाकायदा तौर पे इस इंटेंशन के साथ कि इसको मैंने वापस लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो वापस जो ही आया, और इस एंगल से मैं उसको वापस लाया कि आप अपने वालदैन के नाम फरमाबरदार कभी भी नहीं हो सकते, जो मर्ज़ी हो। आपके वालदैन ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया था, ये इसलिए नहीं परवरिश की थी, और इसलिए आपके लिए पता नहीं ये क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त नहीं की थी कि आप ये इतना बड़ा काम भी कर गया, और उनको भी आप कहते हो कि मैं उनका नाफरमान बच्चा हूँ या वो मैं उनको नहीं जानता। तो आप मेहरबानी करो, वापस आओ, अपने वालदैन को उसी तरह इज़्ज़त दो, अदब करो, कुरान पाक की तालीम हासिल करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तो इंशाल्लाह आप बरी हो जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे ही हुआ। को 2-3 महीने में अल्लाह ताला ने वो बिल्कुल उसको बरी कर दिया। वो अब घर अपने वालदैन की उसी तरह खिदमत करता है, अपने घर में मौजूद है, और मेरे साथ उसका परमानेंट रब्ता, परमानेंट मुझे मैसेज भी उसके आते हैं। वो सर, मैं अपनी आंखों देखा वाक़या सुनाता हूँ कि हम आपसे मिले थे, एक हमारे वो दोस्त का भाई अंदर आपके पास हवालात में था, वो निसार जोया साहब का। तो आपसे सिफारिश की, तो आपने ऐसे बोला उसे, वो निसार जोया ने बोला कि यार हमारी ना सुलह नहीं हो रही। तो सर आपने बोला कि हमारी मस्जिद अंदर बनी है, आप उसका साइज़ लें, उसके अंदर वो कलीन की ज़रूरत है, वो डलवाए और आपकी सुलह हो जाएगी। वो यकीन जाना, उसने वो कलीन डलवाया, और वो जो पहले लोग मान ही रहे थे उसकी सुलह होगी। तो आपकी ज़ुबान मुबारक की कोई ऐसी है कि वो लोगों के राय काम साहब, मेरी ज़ुबान तो क्या मुबारक होनी, ये अल्लाह की मेहरबानी थी, और वो बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कुरान पाक में कि आप इन्नमा अमालु बिन्नियात, आपकी नीयतों का दरमदार आपके अमलों पे होता है कि आप अमल कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं। आप अगर वाकई वही खूबसूरत सोच है, आप जिस हवाले से वो काम कर रहे हैं और खूबसूरत सोच के साथ करते हैं, तो अल्लाह ताला उसी तरह मेहरबानी करता है। तो मैंने वो चूँकि देखा, और एक ऐसा काम था कि अल्लाह के घर का अगर ये नीयत से काम करेंगे तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे, और अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमाई। क्योंकि अल्लाह ताला, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कवि हदीस है कि हज़रत आदम यानी बाबा आदम अलैहिस्सलाम के तमाम बच्चे ख़ताकार हैं, और सबसे बेहतरीन ख़ताकार वो है जो बार बार माफ़ी मांगता है और अल्लाह की तरफ रजू करता है। और कुरान पाक में भी आपको पता है अल्लाह ताला को माफ़ी मांगना मतलब उसके साथ शरीक करना कितना अदरवाइज़ मतलब नापसंद है, और माफ़ी मांगना कितना ज़्यादा पसंद है। तो मेरा भी यही जहन में था कि चलो अल्लाह के घर का कोई काम करेंगे, थोड़ी माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह मेहरबानी कर देगा, और अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। और ऐसे कई और काम हुए इस तरह। जेल में काम करते हुए सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था आपके लिए? कोई ऐसा याद हो? सबसे मुश्किल लम्हा तो मतलब मैं चूँकि ख़ासकर जब मेरे घर पे मैं कोट लखपत था तो फायरिंग हुई, और उसमें मेरे भाई 2 छोटे और बच्चे और फैमिली सारी मौजूद थी। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा महफूज किया, और अगले दिन फिर उसमें मेरे इवन आसपास जितने भी मेरे करीबी लोग थे तो सब ने कहा कि ये नौकरी दफ़ा करें, बड़े बुरे हालात हैं, क्रिमिनल लोगों के साथ वास्ता है। तो मैंने कहा जी नहीं, अगर अल्लाह ने एक चैलेंज ये मुझे दे दिया है तो मैं इस चैलेंज को बिल्कुल अब कबूल करूँगा, और इस मौत शौत से नहीं डरूँगा। तो मैंने फिर उसी दिन जाके अंदर वो पैगाम भी उन लोगों को उसी तरह का दिया कि भाई रात आए हो तो आज फिर बेशक आ जाना, बस। सर, ईद जैसे मौके पर कैदियों के जज्बात कैसे होते हैं? कहती सब सारे इंसान बेसिकली तो वैसे तो देखे ना जी, अगर कोई और फिर क्राइम कितने करता है कितने तो सालों से कोई थोड़ा कैद डी होता है? रेल हुआ होता है, डी ट्रैक हुआ होता है, बेरारवी का शिकार होता है, लेकिन इंसान तो वो उसी तरह है ना। जज्बात उसके जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो तो जो और जो साइकोलॉजी है
جو سائیکالوجی ہے وہ ہر انسان کی ایک جیسی ہے، تو ان کی فیلنگ بھی سب سے بڑی اس پہ اس دن یہ ہوتی ہیں کہ اوہ ہم اپنے فیملی میں آس پاس یعنی اپنے قریب کے لوگوں سے، اپنے فیملی سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے دور ہیں، اور یہ کتنا مشکل ہے، اور وہ واقعی سب سے بڑا مشکل ٹائم ان کے لیے ہوتا بھی وہ۔ اچھا سر، آپ کے نزدیک عید کا اصل چلو پیغام جی، کیا تیاری ہو گئی جی؟ جی، آپ کے نزدیک عید کا اصل پیغام کیا ہے؟ عید کا سب سے اصل پیغام تو یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کی بجائے نیچے دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، عزیز و اقارب میں اور اپنے آس پاس دیکھیں، اور ان لوگوں کی خوشیاں جو ہے نا ان کو بڑا کریں اور ان کو دوبالا کریں جن کو شاید یہ خوشیاں نصیب نہیں ہیں جو آپ کو ہیں۔ تھینک یو۔